Hello all. Today we will discuss about the new topic, that is gender sensitization. It is a very recent topic and awareness is being created all over the world about this, which is also in SDG, Sustainable Development Goals. We have goal number 5, that is gender equality. So gender sensitization topic even become important from that point of view also. Let us start our today's topic of discussion, that is gender sensitization. It may be either in urban or rural area. So first of all, we will discuss what is gender sensitization. It is a process of creating awareness and promoting understanding of gender identity and gender issues. हम इसमें अवेयरनेस क्रिएट करेंगे कि कौन जेंडर आइडेंटिटी क्या है, लोग समझ पाएं, और जेंडर बेस्ड इश्यूड क्या है. नेक्स्ट, it involves the changing traditional gender roles, जो हमारे gender traditional roles है, जैसे कि for example we can say the women is only for household work, ये हमारा traditional role था, but the men will go outside and they are for the outside work. But in gender sensitization, these roles are changing. Similarly, the norms which the society have fixed in the as per our traditional custom कह सकते हैं आप, and some stereotypes are prevalent in the society. So in gender sensitization, we will change traditional gender roles, norms, stereotype, and we ensure that everyone is treated fairly and equally regardless of their gender. हम ट्रेडिशनल रोल जेंडर सेंसिटाइजेशन के थ्रू हम लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करेंगे, और हम लोगों को बताएंगे कि we will tell the peoples that how the traditional roles which are roles, norms, stereotype are changing, and in this way we are promoting the fairness and equality among the people without regardless of their gender. Next, it involves the education. Gender sensitization हम कैसे करेंगे? We can educate the people. We can make good communication and make them understand, and action to address systematic gender-based discrimination and equality. Education के थ्रू हम education देंगे जिससे लोगों की मेंटालिटी डेवलप होगी और वो जेंडर पे डिस्क्रिमिनेशन को छोड़ पाएंगे, और इनइक्वालिटी भी एड्रेस होगा. पीपल आर मोर अवेयर होंगे, लोग, उनकी एजुकेशन बढ़ेगी, वो इक्वालिटी अपने आप ही देंगे. सो these are the gender sensitization. And what are the importance of gender sensitization? जब इक्वालिटी आएगी, मेन और वुमेन को बराबर चांस दिए जाएंगे, तो एक बैलेंस्ड ग्रोथ होगी सोसाइटी में. So gender sensitization is needed to create a more inclusive and equitable society. Next, first of all, you must know what is the sex and the gender. Sex refer to biological difference between the males and females. जो born से हैं, जो एक लड़का या लड़की होने के कारण उनमें शुरू से ही है, by born है वो, या जो बाद में भी लड़का और लड़की होने के जो भी biological और physical changes हैं, उनको वो जो भी होते हैं वो सभी सेक्स में काउंट होते हैं. इसके अलावा जो वर्किंग में है चेंजेस, और जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, बाय बर्थ नहीं है पर सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, सोशली कंस्ट्रक्टेड है, रोल्स हो, चाहे बिहेवियर हो, चाहे एक्टिविटी हो, चाहे कोई भी एट्रीब्यूट्स हो, जो कि मेन और वुमेन के लिए सही समझे जाते हैं. फॉर एग्जांपल हम कहेंगे घर का काम करना औरतों के लिए अच्छा है, जबकि जेंट्स के लिए बाहर का दिखना ज्यादा बेटर है. तो ये जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, इसको हम जेंडर कहते हैं, इसको हम जेंडर बोलते हैं. लोग, पीपल आर बोर्न एज ए मेल और फीमेल. बोर्न तो वैसे ही होते हैं मेल और फीमेल, बट गर्ल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए या बॉय की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, ये उसे सोसाइटी बताती है उन्हें. तो ये जो बिहेवियर है, ये जेंडर है. हम इसी पे आज टारगेट कर रहे हैं. ये क्या है आप देखो, कुछ देयर आर द फ्यू एग्जांपल अबाउट इट. गर्ल्स क्राई बट डू नॉट, आप एक जनरल स्टेटमेंट बना देते हैं. लड़कियां रोती हैं पर लड़के नहीं रोते होते. इट मीन्स उनके क्राई, जो उनकी वर्ब है, जो उनका एक्शन है, वो सिर्फ ये लड़के
नहीं रो सकते, सिर्फ लड़कियां रोती है। ये किसने क्रिएट किया है? दैट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी। क्या ये बॉर्न है? नहीं। आप देखो बच्चा जब पैदा होता है शुरू में बच्चे तो दोनों ही रोते हैं, आइदर इट बी गर्ल एंड बॉय। तो बाय बॉर्न नहीं है, ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है। तो दिस इज द जेंडर। ओके, वाई आर यू क्राइंग लाइक ए गर्ल? एक बॉय को बोला जाता है वाई आर यू क्राइंग लाइक ए गर्ल, इसका मतलब इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या है कि लड़कियां तो रोती हैं, लड़के नहीं रोते। तो ये भी सोसाइटी क्या क्रिएट कर रही है? जेंडर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, थर्ड वन। इट इज बीइंग टोल्ड टू द गर्ल एंड द बॉय व्हाट आर दे एक्सपेक्टेड टू वियर। लड़के को बोल दिया जाता है कि आपको ये पहनना है, ये पहनना है। आप शॉर्ट्स भी पहन सकते हैं, पर लड़की को बोला जाता है स्पेशली इन द रूरल एरिया कि आप शॉर्ट नहीं पहनेंगी, ठीक है। आप प्रॉपर जो लड़कियों के ड्रेस हैं प्रॉपर सूट पहनेंगी। इस तरह का बिहेवियर जो है दैट इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी एंड दैट्स इट इज जेंडर। नेक्स्ट देखिए, गर्ल कैन डू लाइट वर्क बट नॉट हैवी। गर्ल जो है थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का फुल्का काम कर सकती है, बट हैवी काम गर्ल्स के नहीं लिए नहीं है। ये काम की जो रिस्ट्रिक्शन है किसने बनाई है? सोसाइटी ने। अगेन देन दिस बिहेवियर इज जेंडर। सो आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, हाउस होल्ड वर्क इज फॉर द गर्ल एंड द बॉयज आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू दैट। अगर कोई लड़का काम करने भी जाता है, सपोज किसी की मदर खाना बना रही है, खीर बना रही है, बच्चा कहता है मम्मी मुझे सिखा दो खीर। स्पेशली मैं रूरल एरिया की बात करूंगी यहाँ पर। तो माँ उसे बोलती है कि यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू वर्क इन द किचन, दिस इज द वर्क ऑफ विमेन और लेडीज। तो इस बिहेवियर से मदर ने उसे जेंडर क्रिएट कर दिया एक, कि उसके माइंड में बच्चे के शुरू से ही बैठ गया कि वो किचन का काम करने के लिए नहीं है, बल्कि किचन का काम करने के लिए सिर्फ लड़कियां ही होती हैं, अदरवाइज विमेन्स और गर्ल्स वट एवर वही होती है, मतलब एक फीमेल ही काम करती है। तो स्टेटमेंट लाइक यू आर द बॉय सो किचन वर्क इज नॉट फॉर यू, ये क्या है? जेंडर क्रिएट कर रही है, ये सोसाइटी क्रिएट कर रही है। तो दीज आर द जेंडर। I hope now you can now easily recognize what is gender and what is sex. जो by birth biological और physical difference है वो क्या है? सेक्स है। और जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं वो क्या है? जेंडर है। फॉर एग्जाम्पल, विमेन हैव द प्रोक्रिएटिंग कैपेसिटी। विमेन जो है बच्चे पैदा कर सकती है, ये क्या है? ये तो नेचुरल है ना, गॉड ने की है, तो ये सेक्स है। और सिर्फ विमेन ही ब्रेस्ट फीडिंग करा सकती हैं बच्चे को, बेबी को। तो नेचुरल है, ये गॉड ने ऐसा ही बायोलॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है। तो नेचुरल है, ये क्या है? सेक्स है। बट अगर ये कह दिया जाए कि बच्चों की केयर सिर्फ विमेन ही करेगी, तो ये सोसाइटी ने क्रिएट किया है, तो ये जेंडर बिहेवियर है, जेंडर है। ठीक है। तो अब आप लोगों के लिए एक वी हैव द एक्टिविटी, sorry, activity से पहले I want to tell you about the difference between the sex and the gender. These points are for the sex and these points are for the gender. Sex is by birth. By birth जो भी आप में virtues हैं, जो biological physical difference है, that is sex. और जो acquired किए जाते हैं, that is gender. ये by birth होते हैं और ये acquire किए जाते हैं। Either society में कुछ भी, पेरेंट्स से भी हो सकता है, स्कूल से भी हो सकता है, इंस्टीट्यूशन से भी हो सकता है। ठीक है। ये बायोलॉजिकल एंड फिजिकली डिटर्मिन्ड होते हैं। और ये जो है जेंडर, ये सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सेक्स ऑलवेज रिमेन द सेम, हमेशा सेम ही रहते हैं। और जेंडर जो है इट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से बदलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले बोला जाता था लड़कियां सिर्फ घर का काम करेंगी, राइट? बट लेटर ऑन द women have stepped out and they are doing a lot of work and bearing a lot of responsibility and having a very अथॉरिटेटिव सीट्स, मतलब वो बहुत काम कर रही हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर भी हैं। तो ये जेंडर चेंज हो रहा है, देखिए धीरे धीरे। पहले सोच भी नहीं सकते थे कि विमेन भी गाड़ी चलाएगी, बट आज 2 व्हीलर 4 व्हीलर एंड ये चेंज हो रहे हैं। देखिए इट इज चेंजिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जेंडर चेंज हो रहे हैं। नेक्स्ट, यूनिवर्स सेक्स इज यूनिवर्सल फॉर ऑल ह्यूमन बीइंग, सभी के लिए है जो है, पर एक जैसा है। फीमेल है तो यहाँ भी फीमेल है, वहां भी है। यहाँ देखिए डिफ, और जैसे मान लो ब्रेस्ट फीडिंग है, वुमेन करा सकती है, तो नेचुरल है कहीं भी हो, सब पूरी यूनिवर्स में यही सच है। यहाँ जेंडर में डिफरेंस है बिटवीन एंड विद इन द कल्चर। कुछ कल्चर बहुत, मतलब कुछ लोग बहुत एडवांस हैं, वो इतनी जेंडर बायसेस नहीं करते हैं, पर रूरल और बैकवर्ड एरिया में ज्यादा जेंडर बायसनेस होती है। वहां पे सिखाया जाता है
कि ये विमेन को यही काम करने चाहिए और जेंट्स को ये करने चाहिए, विमेन ये नहीं कर सकती, जेंट्स ये नहीं कर सकते, whatever. Now, activity for you is you have to recognize what is gender and what is sex between these 7 examples. Women can give birth to child. Tell what it is. It is biological difference, so it is a sex. Girls, note the boys have long hairs. क्यों? Boys भगवान ने जब पैदा किया तो आप देखिए सभी के बराबर गंजे ही पैदा होते हैं, सभी बाल्ड. ओके, तो लॉन्ग हेयर ना करना ये तो सोसाइटी ने सिखाया ना कि गर्ल्स को लॉन्ग हेयर करने, तो दिस इज अ जेंडर. ओनली बॉयज कैन वियर शॉर्ट, ये भी सोसाइटी का क्रिएटेड बिहेवियर है, तो सो दिस इज जेंडर. ओनली women कैन ब्रेस्ट फीड बेबीज, yes, as the biological and physical structure of women is thus, so it is a sex. Cooking is the work of the woman but not of the man, this is created by society, so gender. क्यों कुकिंग मैं आपसे पूछती हूँ, क्या जितने भी आपने संजीव का नाम सुना होगा, संजीव जी अ बेस्ट शेफ ऑफ इन इंडिया है, तो मेन भी तो अच्छे शेफ होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि कुकिंग सिर्फ विमेन के लिए है, कुकिंग इज आल्सो फॉर द मेन, ये तो सोसाइटी ने क्रिएट किया है, तो दिस इज द जेंडर. ओनली बॉयज आर फियरलेस इंटेलिजेंट स्ट्रॉन्ग, ऐसा बोला जाता है बॉयज फियरलेस हैं, कि गर्ल्स फियरलेस नहीं है, गर्ल्स इंटेलिजेंट नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये बिहेवियर किसने क्रिएट किया है, ये मेंटालिटी किसने क्रिएट किया है, सोसाइटी ने, तो दिस बिहेवियर इज जेंडर. मैन हैव द मूछे, अब मूछे तो लड़कों की ही आएंगी, ये तो बायोलॉजिकल एंड फिजिकल है, तो दिस इज सेक्स. So I hope now gender identity clear to you, what is sex and what is gender. Now our next slide is about gender stereotype. आपने कुछ स्टीरियोटाइप बना लिए, अंधविश्वास कह लो या अवधारणाएं बना लिए, गलत अवधारणाएं. ये वो आइडियाज होते हैं दैट पीपल हैव मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, जो आप सोच के रखते हैं कि मैन यही कर सकता है, और फेमिनिटी विमेन के कारण ये वो यही काम कर सकती है. सच एज व्हाट मैन एंड विमेन ऑफ ऑल जनरेशन शुड बी लाइक, कि उनको कैसा होना चाहिए, जैसे गर्ल को बहुत पोलाइट होना चाहिए, जोर से नहीं बोलना चाहिए ना. एंड व्हाट आर दे कैपेबल ऑफ डू, अभी बताया लाइट वर्क सिर्फ लेडीज कर सकती हैं, जैसे इसका बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है. आप देखिए, हम द मेल स्टीरियोटाइप इज डिस्क्राइब्ड थ्रू द 3 P's, 3 P से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. स्टीरियोटाइप क्या हमने सोचा है कि मैन जो है प्रोवाइडर है, घर के लिए जितना भी जो भी प्रोवाइड करना है सभी मेंबर को, अदर इट मतलब खाना हो, कपड़े हो, जो भी नीड्स हो वो मैन प्रोवाइड करेगा. ओके, बट अब ये चेंज हो रहा है, आप देखेंगे ना, सिंगल वीमेन भी हैं और दे आर डूइंग अ लॉट फॉर द फैमिलीज. नेक्स्ट, प्रोटेक्टर, कि वो प्रोटेक्टर है और वो प्रोक्रिएटर भी है, तो ये सब मैन के स्टीरियोटाइप है. नेक्स्ट, फीमेल स्टीरियोटाइप क्या है, फीमेल के लिए बिलोंगिंग टू द वर्ड ऑफ मदरहुड, वाइफहुड, कि वो मातृत्व के काम करेगी, जो भी मातृत्व है, केयर, टेकिंग केयर ऑफ एल्डर्स और ऑफ चिल्ड्रंस एंड वाइफहुड, और जो बीवी के वो काम है वो करेगी. नर्चरिंग द फैमिली, नर्चरिंग में क्या आता है, टू पुट द फैमिली वेलफेयर बिफोर हर ओन, अपना ध्यान रखे या ना रखे, पूरे परिवार का पहले ध्यान रखेगी. पूरे परिवार को आपने देखा होगा खाना खिला के अगर कुछ बचता था तो लेडीज खाती थी, है ना. तो दीज आर फीमेल स्टीरियोटाइप्स, उनको यही समझाया गया है शुरू से कि भाई परिवार को खिला लो, पति और पति को खिला लो फिर खाओ. बी लविंग, कंपैशनेट, केयरिंग, नर्चरिंग, सिंपैथेटिक, दया भाव होना चाहिए. तो ये विमेन स्टीरियोटाइप क्रिएट किए गए शुरू में. क्या सिंपैथेटिक सिर्फ विमेन होने चाहिए, मैन नहीं होना चाहिए, है ना. तो दीज आर ऑल क्रिएटेड बाय द सोसाइटी. इफेक्ट क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप समटाइम मेक द पीपल स्टॉप डूइंग एन एक्टिविटी दे लाइक और रियली वांटेड. अब विमेन तो काम में लगे, घर की केयरिंग में, घर का सारा कंपैशनेट में, सिंपैथेटिक भी होना चाहिए, लविंग भी होना चाहिए, घर के कामकाज में लग गई, तो वो अपना पोटेंशियल जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड में नहीं दे पाई. हमारी अदरवाइज हमारी जीडीपी ग्रोथ होती, वो अपनी सोसाइटी में, अपने कंट्री में अपना एक योगदान देती, जिससे हम बैलेंस ग्रोथ होती है हमारी कंट्री की, राइट. नाउ नेक्स्ट इज जेंडर इक्वालिटी. हम ये सब जान के कि जेंडर है और जेंडर स्टीरियोटाइप है, क्या करना चाहते हैं, वी वांट टू प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी. अब जेंडर इक्वालिटी में ये नहीं है कि दोनों सेम हो जाए, सेम तो गॉड ने ही नहीं बनाया है, राइट. तो
तो क्या इक्वल क्या होना चाहिए? इट मीन्स देयर access to opportunity and life changes is neither depend or nor constrained by their gender. उनके जेंडर के कारण जो सोसाइटिकल बिहेवियर है, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी जो मिले उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अगर मेन को एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी विमेन को भी दें एजुकेशन लेने की, ठीक है। तो जेंडर के कारण उनको अपॉर्चुनिटी का एक्सेस डिनाई नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, it is gender equality is achieved when women and men enjoy the same right, दोनों के राइट सेम होंगे, and opportunities across all the sector of society, सारे सेक्टर में हम सिम अपॉर्चुनिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, चाहे ये इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन हो, इकोनॉमी में पार्टिसिपेट करना हो, तब कोई डिसीजन लेना हो इधर होम घर में, तो जो डिसीजन जैसे हम सोचते हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ मैन ही ले सकते हैं घर से, या घर के जो बड़ा है वो हस्बैंड है मान लो, तो वही डिसीजन लेंगे, या फादर है तो फादर इन लेंगे, नहीं, विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। एंड व्हेन द डिफरेंट बिहेवियर aspirants and need of the women and girls and men and boys are equally valued and famous. जेंडर इक्वालिटी क्या है? उनके बिहेवियर्स को हम बिहेवियर्स को, उनकी नीड्स को, अदर इट बी मैन और बॉय और गर्ल और बी मैन एंड द विमेन, उनकी नीड्स को, उनके बिहेवियर को हम पूरा वैल्यूड करें और फेवर करें। फॉर एग्जाम्पल, हम एक लड़की को बोलते हैं कि गाँव में स्पेशली बोला जाता है, इतनी दूर जाओगी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन कर, लेकिन नहीं नहीं ये तो लड़कों का काम, तो आपने उसकी अपॉर्चुनिटी ले ली, ठीक है, जबकि बॉय को आप अलाउ कर देते हो जाना। तो यहाँ आपने इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं की, तो आपको उसकी उस उसकी इक्वल वैल्यू नहीं की आपने, उसकी जो डिसीजन था जाने का, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी भी नहीं दी जाने की। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। वी शुड प्रमोट द जेंडर इक्वालिटी, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी दी जानी चाहिए, सो कैन दे डेवलप टू द हायर एंड हायर लेवल। So this is all about. Thank you all. These are my reference from which I have taken help. Thank you, thanks a lot.